Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let us begin. So the title of the today's editorial is A Deeper Message on Nepal Elections. The deeper here means that means not the depth one which we talk here. It means the a serious one. Okay. So I have also brought the Hindi translation for the today's article, which will help you in understanding the article in a better way. Okay, so let's learn it in Hindi also. गंभीर संदेश दैट मीन्स अ सीरियस मैसेज ऑन नेपाल्स इलेक्शन नेपाल चुनाव. ठीक है. ठीक है, मतलब एक गंभीर संदेश छुपा हुआ है जो अब नेपाल के चुनाव से जो नतीजे आए हैं ना, अब जो चुनाव हुआ है उस पर एक 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 गंभीर संदेश हमें मिला है. क्या है वो मैसेज, क्या है वो संदेश, हम आगे इस आर्टिकल से पढ़ते हैं. ठीक है. द अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू कमर्स इन नेपाल्स इलेक्शंस is a call for change. Okay, that means the the unexpected performance, that means which we have not expected, that these newcomers can also win the elections. They have won it, and now it's the time for call for change. Call for change means that means they are now it's time that that they should bring the change. The newcomers, those who have won this election, they should bring the चेंज. ओके. नेपाल के चुनाव में नई नवेली पार्टियों का अप्रत्याशित प्रदर्शन, दैट मीन्स द अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस. अप्रत्याशित इज अनएक्सपेक्टेड, प्रदर्शन इज परफॉर्मेंस. ठीक है. द अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, अप्रत्याशित प्रदर्शन बदलाव का संकेत है. दैट मीन्स द नेपाल नाउ. Okay, so now let's see the vocabulary. Tipped. What's the meaning of tipped? To move so that one side is higher than the other, to make something move in this way. Okay, that means moving in a particular way, in a particular direction, probably on the higher side or on the upper side. Okay, like this type, particularly to the upper side or to the higher side. Okay, so what can be the example for the tipped is when we say the sales are tipping to the growing trend. That means the sales are inclined, मतलब जो सेल्स है वो ग्रोइंग ट्रेंड, ग्रोथ के तरफ बढ़ रही हैं. ओके, दैट मीन्स मूविंग इन अ moving tipped means moving in a particular direction, particularly the upper side or the higher side. Okay. Next word is federalism. Federalism is a system of government in which the same territory is controlled by two levels of government. Okay, that means in a country is called as a federal country if there are the two levels of government. Okay, the India is called as a federal country. Why? Because we have the two levels of government. One is the state government and one is the central or union government. Okay, that is called as the federalism. Next is legacy. Legacy means money or property that is given to you after somebody dies because he or she wanted you to have it. Okay, that means in some way we call as a will. That is called as legacy. That means that the property or the money which you got on behalf of the person who have died. Okay, because it's the property of theirs only which they wanted to give it to you. दैट इज़ कॉल्ड एज लेगेसी. ठीक है. उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो आपको देना चाहते थे, या फिर वो चाहते थे कि वो आपको मिले उनके मरने के बाद, जो भी मनी हो या फिर प्रॉपर्टी हो. दैट इज़ कॉल्ड एज लेगेसी. नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक. द मीनिंग ऑफ द रिपब्लिक इज a country that has an elected government and an elected leader called as president. Okay, that means in a country is called as a republican country if the citizens of that particular country elects the government and elects the leader. India is also called as an
Republic is also called a republic country because we, the people of India, elect the government. Okay, elect the leader. Okay, next word is secularism. अगला word है आपका secularism, the belief that religion should not influence or be involved in the organization of the society, education, etc. That means there is no discrimination on the basis of anything. Okay, that is called as secularism. Religion should not influence on the society, education, etc. Okay, that means on the name of religion there should not be the discrimination. That is called as secularism. So India is also a secular country. As per the constitution, India is also a secular country because our constitution says that there should not be any discrimination on the basis of religion. Okay, next is vein. The meaning of the vein is to decrease in size, extent, or degree. Okay, if any particular thing decreases in size or an extent is called as vein. You must have heard the thing called the waning moon. ठीक है, मतलब अमावस्या के अमावस्या आने तक जैसे मून होता है ना वो जैसे घटता रहता है. फर्स्ट इट यूज टू बी लाइक दिस, देन वो घट के इट यूज टू बी लाइक दिस. ठीक है, फिर वो घटता जाता है, फिर वो इतना सा हो जाता है, देन देन इट बिकम्स दिस मच. ठीक है, वो घटते जाता है ना, मून कम होते जाता है. दैट इज़ कॉल्ड एज वेनिंग. नॉट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल. वेनिंग का मतलब मून घटना नहीं होता है, बट आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए. किसी चीज़ का घटना इज कॉल्ड एज वेनिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज बाइड. आपको इसको बियॉर्ड करके नहीं पढ़ना है. इसका प्रोनाउंसिएशन इट्स प्रोनाउंस इज बाइड. द मीनिंग ऑफ द बाइड इज to keep somebody happy and confident. This is the one meaning. What's the another meaning? To keep something at a high level. That means to keep thing at afloat. We can say किसी भी चीज़ को ऊपर रखना, higher level पे रखना. ठीक है, that is called as bide. afloat, ऊपरी परत पे रखना, that is called as bide. ठीक है. Next word is beleaguered in a very difficult situation. Okay, is called as beleaguered. If you are in a very difficult, that means it suggests that it suggests the beleaguered meaning. Okay, so let's see what our paragraph says. I have also brought the Hindi translation here. If अगर आपको कोई भी परेशानी होती है इंग्लिश में समझने के लिए इस आर्टिकल को, वी विल ऑल्सो रीड इट इन हिंदी. ओके, एट फेस वैल्यू. ठीक है, ऑफ द आउटकम ऑफ नेपाल्स जनरल इलेक्शन वॉज एक्सपेक्टेडली फेवरेबल टू द रूलिंग 5 पार्टी अलायंस. ठीक है, दैट मीन्स ये जो रिज़ल्ट आया है ना, this outcome is the result. ठीक है, that means ये जो result आया है, आपको यहाँ पे ब्रेक देके पढ़ना होगा. the outcome was favorable. ठीक है, आपको ऐसे ब्रेक करके पढ़ना है तभी आपको समझ में आएगा. बाकी के ये जो चीज़ें हैं ना, नेपाल जनरल इलेक्शन, ये एक्स्ट्रा है. आपको पढ़ना ऐसे ही है. एट द फेस वैल्यू द आउटकम वॉज फेवरेबल टू द रूलिंग 5 पार्टी अलायंस. ठीक है, तो नेपाल का जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसका जो अभी रिज़ल्ट आए हैं ये किसके पक्ष में गया. रिज़ल्ट जो ये 5 पार्टी अलायंस मतलब जो एक साथ आए थे ना 5 पार्टीज़ मिल के, दैट इज़ कॉल्ड एज अलायंस. ठीक है, तो उस अलायंस में कौन कौन थे. अब नेपाली कांग्रेस द फर्स्ट वन, second one is CPN Mayos Center, third is CPN United Socialist, fourth is लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, फिफ्थ इज नेपाल एंड राष्ट्रीय जनमोर्चा. ओके, सो यही सभी 5 पार्टीज मिलके इलेक्शन जीता. इनके अलायंस ने इलेक्शन जीता नेपाल का, विच हैज़ वन और एस्टैब्लिश्ड अ लीड,
या तो उन्होंने इतने सीट्स जीते हैं एटलीस्ट 87 आउट ऑफ द 165 सीट्स, मतलब टोटल 165 सीट्स हैं, इसमें से इन्होंने 87 सीट्स या तो जीत ली हैं या फिर उन पे लीड ले ली है, मतलब उस पर आगे चल रहे हैं। ओके, बाकी कैंडिडेट से वो आगे चल रहे हैं इन द FPTP सिस्टम। ये उनका इलेक्शन का एक सिस्टम है। ओके, द एब्रिवेशन फॉर द FPTP इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, ये उनका कुछ इलेक्शन का सिस्टम होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, एंड इट इज़ टिप्ड। हमने टिप्ड का मीनिंग पढ़ा था ना, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव होना, प्रोबेबली अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर हायर लेवल पे मूव होना इज टिप्ड। ठीक है, तो एंड इज टिप्ड टू विन क्लोज टू, और ये जो अलायंस है ना, ये किस तरफ जा रहा है, ये विनिंग की तरफ जा रहा है। किस चीज़ का विनिंग? टू हाफ ऑफ द 1/10 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सीट्स। जितने रिप्रेजेंटेटिव सीट्स हैं ना, 1/10 प्रोपोर्शनल का रिप्रेजेंटेटिव सीट्स जो हैं उसका हाफ जो है वो जीतने के क्लोज हैं। ठीक है, वो जीतने के क्लोज है ये अलायंस। The coming together of the alliance is what helped it overcome the opposition coalition led by KP Oli helmed Communist Party of Nepal। तो ये जो एक साथ आए हैं ना, जो पाँचों लोग एक साथ आए हैं, यही चीज़ उनको हेल्प करी है। किस चीज़ में हेल्प किया है? जो अपोजिशन कोलिशन है, मतलब जो अपोजिशन इनके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी थी, कौन थी? KP ओली उस पार्टी के हेड थे। और वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, CPN, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है, ये जो पार्टी थी इसके हेड हैं, हेड मतलब इसके जो हेड थे कम्युनिस्ट पार्टी के KP ओली। इनको हराने में, ओवरकम मतलब इनको हराने में इस अलायंस को हेल्प हुआ है। ये जो जब साथ में आए तभी इनको हेल्प हुआ था। अगर ये पांचों अलग अलग इंडिविजुअली लड़ते थे तो इनको हेल्प नहीं होती थी। अब ये पांचों एक साथ आए हैं तो ही इनको हेल्प मिली है KP ओली की पार्टी को हराने में। इट वन और लीड्स इन 49 सीट्स इन द FPTP सिस्टम। ठीक है, ये जो KP ओली की जो पार्टी है इसने 49 सीट्स जीती हैं in the UML, while the UML is leading as the single largest party in terms of PR votes। ठीक है, तो ये जो UML है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है इन टर्म्स ऑफ PR वोट्स। PR इज़ आई थिंक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव वोट्स, ऐसे कुछ होगा। इन्होंने यहाँ पे एब्रिवेशन नहीं दिया है, तो वोट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये अलायंस है, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होती है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किसे कहते हैं? अगर आप खुद अकेले एक ही पार्टी है, उसमें किसी का भी अलायंस नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी यहाँ पे जीत रही है? UML। ठीक है, अब आइए हम इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं। नेपाल के आम चुनाव के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक हैं। एज वी हैव नोन, आउटकम इज़ एक्सपेक्टेडली फेवरेबल। ठीक है, इनमें नेपाली कांग्रेस CPN, अभी यहाँ पे सभी ये नेम्स दिए गए हैं हिंदी में भी। ठीक है, CPN माओवादी केंद्र, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल और राष्ट्रीय जनमोर्चा। ठीक है, सो दिस कोलेशन, ये सभी पांचों नाम दिए गए हैं। ये जो 5 पार्टियों वाले सत्ताधारी गठबंधन इज अलायंस, गठबंधन ने सरल बहुमत प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में 165 सीट में से कम 87 सीट या तो जीत ली हैं या उन पर आगे हैं। ठीक है, दिस वी हैव लर्न, आइदर दे हैव वन और दे आर लीडिंग एट द 87 सीट्स। ठीक है, इनके अलावा उम्मीद है कि यह गठबंधन 110 अनुपातिक इस प्रोपोर्शनल प्रतिनिधित्व PR वाली सीटों में लगभग आधी सीटें
जीत जाएगा। ठीक है, ये जो रेशियो है उनका समवॉट 110 प्रोपोर्शनल सीट्स, उसका हाफ ऑफ द सीट्स ये अलायंस जीत जाएगा। दिस इज़ व्हाट ऑथर इज सेइंग। ठीक है, पांचों पार्टियों के गठबंधन बनाकर लड़ने से उन्हें फ़ायदा मिला है और केपी ओली की अगुवाई वाली, हेल्प मीन्स अगुवाई, हेल्प इज वो जो लीडर थे। ठीक है, हियर वी हैव लर्न, यू विल सी दिस ट्रांसलेशन। ठीक है, अगुवाई वाली विपक्षी गठबंधन को शिकस्त देने में मदद मिली है। शिकस्त इज दिस वन, ओवरकम, उनको हराने में मदद मिली है। उनका जो ये अलायंस आया है ना, इसीलिए उनको मदद मिली है। ठीक है, ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनवादी, दिस इज़ द नेम। ठीक है, दिस इज़ यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने सरल बहुमत प्रणाली में 49 सीट पर बढ़त बना ली है। 49 सीट्स केपी ओली की पार्टी ने जीत ली है। हालांकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व वोटों में यूएमएल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है। ठीक है, दिस वी हैव learned here that UML is the leading single largest party in terms of PR vote. If we consider the only single largest party, not the alliance, then UML is leading now. ठीक है, now see, let's see the next paragraph. But the mandate shows, mandate means the election, the results of this election shows that the long standing mainstream parties, that means these parties which were contesting from the long time, जो कि बहुत टाइम से contest कर रही थी इलेक्शंस में और जो जीत भी रही थी, नाउ हैव मोर चैलेंजर्स। अब उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं, उनको चुनौती देने वाले बहुत सारे लोग आए हैं। द लार्जली अर्बन बेस्ड ओवर न्यू कमर राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी हैज़ लेड इन और वन 8 सीट्स। ठीक है, तो कौन से इनको जो ये थे पुरानी पार्टीज, अब इनको कौन चैलेंज करने आ गई हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, जो कि ये लार्जली अर्बन बेस्ड है, मतलब सिटीज़ के एरिया में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल है। तो ये सीट क्या है? वाइल एमर्जिंग एज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन वोट टर्म्स एंड ऑल्सो गेट अ साइजेबल नंबर ऑफ PR सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभी ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। फर्स्ट लार्जेस्ट उनका अलायंस दिस ये वाला आ गया, फर्स्ट लार्जेस्ट ये आ गया अपना UML, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, लेड बाय अ फॉर्मर टेलीविजन पर्सनालिटी। तो ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है, इसको कौन लीड कर रहा है, कौन लेड कर रहा है, कौन हेड है इस पार्टी का? तो ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है, इसे कौन लीड कर रहा है? एक टीवी पर्सनालिटी है जो कि एक्टर थे, टीवी में काम कर चुके होंगे। तो कौन है वो? अब टीवी पर्सनालिटी राबी लामी छाने द तो ये उनका नाम है, राबी लामी छाने। द RSP हियर इज़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हैज़ वेग आइडियोलॉजिकल व्यूज़। तो उनके जो आइडियोलॉजिकल व्यूज़ हैं ना, वो बहुत ही वेग हैं, मतलब अनक्लियर हैं उनके व्यूज़, बट अ क्लियर पोजीशन अगेंस्ट फेडरलिज्म। उनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही वेग हैं, अनक्लियर है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल, वो किस तरीके से सोचते हैं, बट उनकी पोजीशन इस किस पॉइंट पे क्लियर है? एकदम क्लियर है फेडरलिज्म पे। ठीक है, वो फेडरलिज्म के बारे में जो भी सोचते हैं बहुत ही क्लियर कट सोचते हैं, क्लियर कट बोलते हैं। सीकिंग टू डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबलीज दैट वेयर सेटअप अंडर द फेडरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये RSP जो पार्टी है, ये क्या चाहती है कि ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज बने हैं ना, हम इसे निकाल दें, दैट वेयर सेटअप अंडर द फेडरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फेडरलिज्म जो ये है ना, लाइक दो 2 लेवल्स शुड बी देयर इन द कंट्री, ये इसको नहीं सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही लेवल हो। ठीक है, इट्स परफॉर्मेंस पॉइंट्स टू द इनएबिलिटी ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टीज
to ensure stability or effect policies to lift the living standards of Nepalis in the country that seems much youth out migration। ठीक है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये जो आरएसपी है, इस अभी ये इतने सारे सीट्स इन्होंने जीत लिए हैं, 8 सीट्स, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि ये हमें इनएबिलिटी दिखाता है, अक्षमता दिखाता है। किन चीज़ की अक्षमता? मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो कि बहुत इनसे आगे हैं, बहुत पुरानी पार्टीज़ थी, जो एक्सपीरियंस पार्टीज़ थी, उनकी इनएबिलिटी है, वो सक्षम नहीं थे। किस चीज़ में सक्षम नहीं थे? इफ़ेक्ट पॉलिसीज़ मतलब इम्प्लीमेंट करना। जो भी पॉलिसी बना है वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सक रहे थे जो भी पॉलिसीज़ थी। किस चीज़ की पॉलिसीज़? टू लिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द नेपालीज इन अ कंट्री। जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीने का जो स्तर है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, हेल्थ, एक पर्सन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्लूड होता है, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये सब के रिलेटेड जो पॉलिसीज़ थी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी बाकी की सभी पार्टीज़, इसलिए उनसे अब नेपाल के सिटीजन्स थक गए हैं और इन्हें सोचा कि अब इस पार्टी को हम वोट देते हैं, ठीक है। तो इन अ कंट्री, किस टाइप की नेपाल है? कंट्री दैट सीज मच यूथ आउट माइग्रेशन। तो नेपाल का जो यूथ है वो क्या प्रेफर कर रहा है आजकल के दिनों में? किसी बाहर की कंट्री में माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो वहाँ का जो यूथ है, जो न्यू जो न्यू जनरेशन है ना, वो क्या कर रही है? वो अब नेपाल से बाहर निकल के दूसरे देशों में काम करना पसंद कर रही है, बिकॉज़ वहाँ पे उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं, ठीक है। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। इस जनादेश से यह पता चलता है कि लंबे समय तक दबदबा रखने वाली मुख्यधारा की पार्टियों के सामने अब चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, ठीक है, चैलेंजर्स आ गए हैं, ठीक है। मोटे तौर पर शहरी क्षेत्र में पैठ रखने वाली नई नवेली राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, दिस इज आरएसपी, ने 8 सीटों पर बढ़त बना रखी है, ठीक है, दैट इज़ 8 सीट्स। कुल वोटों के मामले में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी वो बनी है अगर हम सभी वोट्स को देखें तो। जबकि प्रतिनिधि सभा में भी उससे अच्छी खासी पीआर सीट मिलने की उम्मीद है। इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो, वहाँ पे भी उनको अच्छी सीट्स मिलेंगी, जैसे कि हमारे पास होता है ना लोकसभा, राज्यसभा, वैसे इनका भी कुछ होगा लेवल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व टेलीविज़न पत्रकार, दैट इज़ फॉर्मर टेलीविज़न पर्सनालिटी, मतलब वो पहले थे अब नहीं हैं। दे हैव गिवन हियर द पत्रकार, दैट मीन्स द जर्नलिस्ट, बट यहाँ पे इंग्लिश में उन्होंने नहीं दिया है, तो वो बस हम इतना याद रखते हैं कि वो टीवी में थे, या तो फिर वो कुछ जर्नलिस्ट थे या फिर कुछ और काम करते थे, बट वो टीवी से रिलेटेड ही थे, कुछ टीवी पे आते थे, जिनका नाम है रवि लामिछिने की अगुवाई वाली आरएसपी। विचारधारा बहुत स्पष्ट नहीं है, ठीक है, उनके विचार जो हैं वो स्पष्ट नहीं है, वेग हैं, ठीक है, लेकिन वह संघवाद के खिलाफ और संघीय संविधान के तहत स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने की मांग कर रही है। दैट मीन्स जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया ना आर्टिकल, वो फेडरलिज्म के खिलाफ है, वो नहीं चाहती है कि फेडरल स्टेट रहे नेपाल। नेपाल में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहे, स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, जैसे हमारे पास इंडिया में ना, वैसे वो ये पार्टी नहीं चाहती है। तो ये पार्टी क्या डिमांड कर रही है कि भंग करना चाहती है, सीक टू डिज़ोल्व, ठीक है, सीक टू डिज़ोल्व करना मतलब भंग कर देना, उस चीज़ को ख़त्म कर देना। क्या चीज़ ख़त्म करना चाहती है? फेडरलिज्म को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट नेपाल में रहे। इस पार्टी के बेहतर प्रदर्शन ने मुख्यधारा की पार्टियों को नकारपन को उजागर किया है, ठीक है। इनका जो परफॉर्मेंस है ना, ये जो इनसे बड़ी पार्टीज़ थी बाकी की, उनसे ये पॉइंट आउट किया है। हमने पढ़ा ना यहाँ पे, इट्स परफॉर्मेंस पॉइंट्स टू द इनएबिलिटी, उनकी जो अक्षमता है वो दिखाया है उन पार्टीज़ की।
कि किस चीज़ में अक्षमता है? नेपाल के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और बड़ी तादाद में पलायन करने वाले युवाओं की ज़िंदगी बेहतर बनाने में नाकाम रही हैं। ठीक है, वो जो पार्टीज़ थी ना, नेपाल के जो युवा हैं उनका जो जीवन स्तर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिविंग स्टैंडर्ड्स है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज आप एक ऑन एन एवरेज आपके कंट्री में एक इंडिविजुअल कितने साल तक जीता है, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये लिविंग स्टैंडर्ड का एक पार्ट है, वो आप छोड़ दो। ठीक है, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड इज़ कितने अच्छे से आपको सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कितने हेल्दी हैं, कितना एक पर्सन को वेल्थ है आपके कंट्री में ओवरऑल, दैट इज़ कॉल्ड एज द लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर आपको वो सुधारने में अक्षमता है, ठीक है, ये जो पार्टीज़ है ना नेपाल की, अक्षमता है, वो जो मेन पार्टीज थी, इसीलिए अब नेपाल की जनता ने आरएसपी को वोट देकर जिताया है। दिस इज़ व्हाट द आर्टिकल सेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द इलेक्शन रिजल्ट्स हैव आल्सो बीन अ ब्लो टू मयोसिस्ट्स एंड मधेशी पार्टीज़। ठीक है, तो ये जो मयोसिस्ट्स और मधेशी पार्टीज़ हैं, इनके लिए भी एक धक्कादायक बात है। विच प्लेड अ क्रूशियल रोल, तो विच ये किसके लिए लगा है? मयोसिस्ट और मधेशी पार्टीज़ के लिए है। तो इन पार्टीज़ ने एक बहुत ही क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था फेडरलिज्म और रिपब्लिकन नेपाल। फेडरलाइजेशन मतलब ये जो 2 लेवल्स का गवर्नमेंट है ना, ये बनाने के लिए इन पार्टीज़ ने भी बहुत ही कंट्रीब्यूट किया था। देयर लेगेसी इन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग डिड नॉट हेल्प देम ओवरकम द फैक्ट दैट, ठीक है, तो लेगेसी हमने पढ़ा था, द प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो कि किसी और को मिले। ठीक है, तो वो जो चाहते थे ना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, तो वो भी उनको हेल्प नहीं कर पाया टू ओवरकम द फैक्ट दैट वोटर्स वर टायर्ड ऑफ देयर अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल स्टांसेस। मतलब वो जो वादे पे वादे कर रहे थे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट, कि हमें ये सा मौका मिल जाए तो हम ये करेंगे, हमें ये मिल जाए तो हम ये करेंगे। ये जो पार्टीज़ थी ना, मयोसिस्ट और मधेशी पार्टीज़, ये सिर्फ यही कर रही थी। ठीक है, तो बस अब वहाँ के वोटर्स टायर्ड, थक गए थे इन सब वादों से। ठीक है, वाइल देर इज़ नो थ्रेट टू रिपब्लिकिज्म और सेक्युलरिज्म इन नेपाल। हालांकि ये बात अलग है कि अभी भी रिपब्लिकिज्म मतलब जो जनता ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, और जो सेक्युलरिज्म है, रिलीजन के नाम पे बयास नहीं है, वो उससे कोई भी नेपाल में प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव फेडरल एजेंडा विल हैव टू इंश्योर दैट, एक और अब किस चीज़ की ज़रूरत है? वो रिपब्लिकिज्म और सेक्युलरिज्म की तो प्रॉब्लम नहीं है, पर किस चीज़ की ज़रूरत है? एक फेडरल एजेंडा, मतलब जो स्टेट और गवर्नमेंट मिल के एक एजेंडा बनाए, उसमें क्या इंश्योर हो that provinces are sufficiently empowered, else the enthusiasm for the federalism will wane further। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लाए, एक एजेंडा बनाए जिसमें जो प्रोविंसेस हैं, मतलब जो स्टेट्स हैं अलग अलग नेपाल के, उनको पावर मिले। ठीक है, अब शायद ऐसा होगा कि स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर नहीं होगा, इसीलिए शायद आरएसपी जो पार्टी थी, इसलिए वो ऐसा मांग करती होगी कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहे, एक ही लेवल का गवर्नमेंट रहे तो अच्छा होगा। शायद ऐसी कुछ होगी उनकी गवर्नमेंट, उनका वो उनके कंट्री का पॉलिसी। ठीक है, तो अब हमें ऑथर क्या कह रहे हैं, एक फेडरल एजेंडा बनाना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को, ताकि स्टेट्स को भी सफिशेंट पावर मिले। अगर ऐसा ना होता है तो, और एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो एंथुजियाज्म फॉर द फेडरलिज्म विल वेन फर्दर। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बात सच हो जाएगी कि जैसे आरएसपी मांग कर रही है ना कि हमें फेडरलिज्म नहीं चाहिए, बाकी के लोग भी फिर कहेंगे कि हाँ सही बात है, फेडरलिज्म नहीं चाहिए, ये बात और घटती जाएगी। ठीक है, ये एंथुजियाज्म, नॉट ये बात, जो एंथुजियाज्म है, मतलब जो लोग, जो ये पार्टीज़ मधेशी और मयोसिस्ट पार्टीज़ जो चाहती है ना कि नहीं फेडरलिज्म बना रहे, ये घटता जाएगा। वेन मतलब घटना, मैंने आपको कहा था ना,
तो ये घटता जाएगा, नेपाल में फेडरलिज्म चले जाएगा, फिर सिर्फ एक ही आएगा कि सिर्फ एक लेवल का गवर्नमेंट हो। दिस इज़ व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे अस। ठीक है, चुनाव के नतीजे माओवादियों और मधेसी पार्टियों के लिए भी झटका साबित हुआ है। इन पार्टियों ने गणतांत्रिक नेपाल को संघीय स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाई है। एज वी हैव लर्नड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फेडरलिज्म ऑफ रिपब्लिकन नेपाल। ठीक है, संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उन्होंने हेल्प किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग में नेपाल के, इन पार्टियों को फ़ायदा नहीं हुआ है। ऑल्दो उन्होंने इतने साल से काम किया है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर भी इन पार्टीज़ को उससे कुछ नहीं फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वाई मतदाता उनके अवसरवादी राजनीतिक पैतरों से थक गए हैं। दैट इज़ पॉलिटिकल स्टांसेस। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, उन सभी से वहाँ के वोटर्स थक गए हैं। दे आर टायर्ड नाउ। हालांकि नेपाल में गणतांत्रिक या धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई खतरा नहीं है। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट रिपब्लिकिज्म और सेकुलरिज्म पे अभी कोई ख़तरा नहीं है। ऐसी बातें हो रही हैं कि हम इस फेडरलिज्म को हटा दें, ये कर दें, वो कर दें, पर अभी के लिए तो कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ज़्यादा व्यापक संघीय एजेंडा सुनिश्चित करना होगा ताकि प्रांतों के पास पर्याप्त शक्ति रहे, वरना संवाद के खिलाफ नाराज़गी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन दिस आर्टिकल। जब मैंने एक्सप्लेन कर रहा था कि एक ऐसा एजेंडा हो, फेडरल एजेंडा हो, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो फेडरलिज्म ख़त्म करने की बात है ना, ये और बढ़ती जाएगी, और उनकी नाराज़गी जो है, वेन है ना, ये और बढ़ता, वेन मतलब फेडरलिज्म घटता जाएगा। दिस इज़ व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ नाउ। द विनिंग नेपाली कांग्रेस, जो अब वो नेपाली कांग्रेस जीती है, विल ऑल्सो हैव टू लुक डीपर इनटू इलेक्टोरल रिजल्ट्स। लुक डीपर मतलब उनको खुद को एनालाइज करना होगा, विच हैज़ बिन बाइड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स यूथ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जो उनके यूथ कैंडिडेट्स ने परफॉर्म किया है, ठीक है, बाइड हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था ना इस आर्टिकल में, टू कीप समथिंग एट अ हाई लेवल, किसी चीज़ को ऊपर रखना। ठीक है, तो उनके यूथ कैंडिडेट्स जो है ना, नेपाल कांग्रेस को ऊपर रखा, विनिंग पोजीशन पे रखा। लेड बाय वेटरन्स, वेटरन्स मतलब जो पुराने मेंबर्स हैं पार्टी के, मस्ट कंसीडर, ये जो पुराने मेंबर्स हैं उनको ये बात को ध्यान में रखना होगा कि वो अब यंग लीडर को अपॉर्चुनिटी दें, जैसे कि गगन थापा हैं, टू टेक ओवर, मतलब अब वो आके संभालें इस पार्टी को, ना कि अब वेटरन्स जो है ना वो अब इस बात को छोड़ दें। अब जो गगन थापा है, जो यंग हैं, यूथ हैं, फ्रेश माइंड है, उनको मौका मिलना चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। अनलाइक अदर साउथ एशियन डेमोक्रेसीज़, जो साउथ एशियन में अभी डेमोक्रेसीज़ हैं उनकी बात, उनको अगर हम अलग रखें तो नेपाल्स इलेक्शन वेर मार्क्ड बाय द अब्सेंस, कि नेपाल के इलेक्शन में ऐसा कुछ ये सब चीज़ें नहीं थी। कौन सी चीज़ें नहीं थी? लार्जली कॉल्स फॉर वोटिंग ऑन रिलीजियस और सेक्टरियन बेसिस एंड, तो जाके ऐसा देखा गया है कि साउथ एशियन के जो डेमोक्रेसीज हैं, मतलब साउथ एशिया में कंट्रीज़ जो आती हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, भूटान, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ना, लार्जली, बाकी सब तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इंडिया में जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे बहुत ही बात करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। सेक्टरियन मतलब नॉर्थ के हो गए, साउथ का हो गया, ईस्ट के हो गए, वेस्ट के हो गए, ऐसे डिवाइड एंड रूल बहुत हमारे देश में चलता रहता है। तो नेपाल में अनलाइक अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, अनलाइक मतलब उनके जैसे तो नहीं था नेपाल में, ये सब अब्सेंट था। रिलीजियस बेसिस पे, सेक्टरियन बेसिस पे करना, ये सब अब्सेंट था। एंड डिलीवर द रिजल्ट्स ट्रू टू द कंट्रीज पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। तो जो पॉलिटिकली डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटीज़ मतलब बहुत ही विविधता, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू मतलब सही मायनों में वोट किया है वहाँ के लोगों ने, ताकि
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए उनके कंट्री में, ठीक है। येट अ बेलीगर्ड नेपाली सिटीजनरी, बेलीगर्ड मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, ठीक है। ऑल्दो इतना सब कुछ अच्छा है नेपाल में, रिलीजियस के बेसिस पे नहीं होता है, और अच्छे से सही मायनों में इलेक्शन हुआ है, सही मायनों में रिजल्ट्स आए हैं। तो येट इससे कॉन्ट्रास्ट अब आ रहे हैं, यहाँ सब कुछ अच्छा था, अब ख़राब चीज़ क्या हो रही है, बेलीगर्ड नेपाली सिटीजनरी, मतलब जो नेपाल के जो आवाम हैं, सिटीजनशिप है, वो अब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है ऑलरेडी, दैट हैज़ वेटेड फॉर डिकेड्स फॉर डेमोक्रेसी टू अनलिश बेटर डेवलपमेंटल आउटकम्स। तो नेपाल के जो सिटीजन्स हैं वो कई डेकेड्स मतलब कई सालों, एक डेकेड होता है 10 ईयर्स का, तो डिकेड्स मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10, कई सारे वर्षों तक वो इंतज़ार करते रहे हैं ताकि उनको डेमोक्रेसी से, मतलब जिन लोगों को उन्होंने चुना है एज अ लीडर, वो बहुत डेवलपमेंटल आउटकम्स मतलब रिजल्ट, बहुत ही डेवलपमेंटल चीज़ें करें, देश को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अनलीश मतलब खोल देना, तो डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो खोल दे, वो उन्होंने वेट किया है कब तक, जो वेट में ही रह गई है वहाँ के सिटीजनशिप, तो वो वहाँ की डिफ़िकल्टी में है वहाँ का जो सिटीजनशिप है, इसलिए वहाँ पे ऑथर ने उन्हें बेलीगर्ड कहा है, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कि कुछ नया हो, ठीक है, आउटकम्स डिज़र्व द चेंज, ठीक है। अब हमें बदलाव चाहिए, वो जो आपका घिसा पिटा डेवलपमेंट है वो नहीं चाहिए हमें, अब सही तरीके से सही मायनों में डेवलपमेंट चाहिए नेपाल में। तो ये जो चीज़ है ना, इट्स नाउ अप टू पार्टीज़ टू प्रोवाइड दैट। तो अब जो ये पांचों अलायंस आए हैं, पांचों मिलके, इसीलिए यहाँ पे पार्टीज़ लिखा गया है। तो अब ये इनके ऊपर है कि अब ये जीत गई हैं, तो अब ये इनके ऊपर है कि वो सही मायनों में उनको अच्छे से डेवलपमेंट करके दे और अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलें, ठीक है। विजेता नेपाली कांग्रेस को भी इस चुनाव नतीजों का गहराई से विश्लेषण करना होगा, ठीक है। लुक डीपर इस विश्लेषण करना, एनालाइज करना, जिसमें उस युवा उम्मीदवार को बेहतर प्रदर्शन का प्रसाद मिला है। बुजुर्गों की अगुवाई वाली इस पार्टी को अब युवा नेतृत्व गगन थापा के हाथों में कमान सौंपने पर विचार करना चाहिए, ठीक है। वेटरन इज़ दिस एज, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उस पार्टी के, मतलब जो पुराने हैं ना, उनको अब विचार करना चाहिए कि अब जो यंग यूथ लीडर है गगन थापा, उनके हाथों में अब हमें दे देना चाहिए लीडरशिप पार्टी का। दक्षिण एशिया के दूसरे लोकतंत्र से अलग नेपाल, ठीक है, अनलाइक मतलब उनसे अलग है नेपाल। नेपाल के चुनाव में धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर मतदान नहीं हुआ, ठीक है। रिलीजन या दिस कास्ट क्रीड सेक्टर, इसके बेसिस पे वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, और चुनाव नतीजे भी देश की राजनीतिक विविधता के मुताबिक आए हैं, ठीक है। तो जैसे अलग अलग पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, तो जैसे वो चाहते थे ना कि सच ट्रू रिजल्ट्स आए, तो वो आए हैं। बेहतर विकास की ललक में दशकों तक लोकतंत्र का इंतज़ार करने वाले नेपाली नागरिकों को बदलाव चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो इंतज़ार कर रहे थे दशकों से, डेकेड्स इज दशक, ठीक है, ये जो इंतज़ार कर रहे थे, बदलाव चाह रहे थे, उनको नहीं मिला है बदलाव। वो कई सालों से, मल्टीपल्स ऑफ 10 दशकों से इंतज़ार कर रहे थे, पर उन्हें कुछ बदलाव नहीं मिला है। उन्हें यह बदलाव मुहैया कराने की जिम्मेदारी अब राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है। तो अब ये जो पार्टीज जीती है ना, इनके ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो दिस वॉज द आर्टिकल। सो सजेस्टिव इज़ द टोन, ठीक है। हमें ऑथर ने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, देन सजेस्ट किया कि उन्हें अब पार्टी पे पूरा जिम्मेदारी है, तो उन्हें ये प्रोवाइड कर देना चाहिए। सजेस्टिव इज़ द टोन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द वोकैबुलरी टेस्ट। मैंने आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको बताया था एक्सप्लेन करते हुए इस आर्टिकल को। आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि आपको ये सभी वर्ड्स याद रहें अच्छे से, ठीक है। जल्दी से लिख दो। तो टिप, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ आपको मीनिंग।
टिप्ड का मतलब होता है एक डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइन होना, पर्टिकुलरली हायर लेवल या ऊपर लेवल की तरफ झुकाव, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फेडरलिज्म, जहाँ फेडरलिज्म मतलब टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। रिपब्लिक इज़ जहाँ पे गवर्नमेंट को चुना जाता है जनता के द्वारा। लेगेसीज मनी या फिर प्रॉपर्टी जो मिलती हैं आपको, ठीक है, जो पर्सन मर गया है वो जो चाहते थे उनके हिसाब से आपको जो मिला है मनी या फिर प्रॉपर्टी। सेक्युलरिज्म रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना होना। वेन इज़ किसी चीज़ का घटते जाना, मैंने आपको वेनिंग मून का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। बाइड अफ्लोट रखना, किसी भी चीज़ को हायर लेवल पे रखना, ठीक है। बेलीगर्ड इज डिफ़िकल्ट सिचुएशन। होप आपको अब ये वर्ड्स अच्छे से याद होंगे। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की तरफ। अगर आप बैंक का मेन सेक्शन का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ऐसे लिखना होता है, तो आपको अब ऐसे लिखना होगा, राइट एन ऐसे ऑन द पॉलिटिकल सिनेरियो इन नेपाल। तो टू राइट दिस ऐसे यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आर्टिकल विच वी हैव लर्न नाउ, विच वी हैव स्टडीड नाउ। तो अब हमने जो आर्टिकल पढ़ा आप उससे पॉइंट्स लेके लिख सकते हो ऐसे। आपको 200 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, तो प्लस और -10 चलेगा, ठीक है। 210 या फिर 190 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो ये ऐसे, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द मेंस सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। एडिटोरियल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बस पढ़ते जाना है। एडिटोरियल से आपका इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगा, आपका मैंने ग्रामर भी कंप्लीट करवाया, वोकैबलरी भी हो गई आपकी, मेंस सेक्शन भी हो गया। तो हमें ओवरऑल सब कुछ पढ़ लेना है एक एडिटोरियल से, ठीक है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेलवेज़, इनफैक्ट यूपीएससी, ठीक है, उनको भी एडिटोरियल पढ़ना होता है, जनरल अवेयरनेस उनको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो अब उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। लाइक भी ज़रूर करिएगा इस सेशन को। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो डू लेट मी नो, I will work upon it. Okay, so this was it for the class. Now I will be winding up. Thank you everyone. Till we meet in our next class. आप हमारे बाकी के सेशंस देख सकते हो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।